Hello student, now the next topic is extraction of aluminium. Okay, extraction of aluminium. The formula of aluminium is Al. So now Al makes up 8% of earth crust. अर्थ crust में 8% क्या होता है aluminium, and this is a third most abundant element in the periodic table. Third most abundant element in the periodic table. Suppose the question is given in your examination ki which is the third most abundant element in the periodic table. The answer is aluminium, and the fourth most abundant element is the iron. Third is the aluminium and fourth is the iron. Now the ore of aluminium is bauxite. Okay, Al2O3.X X is 2. Okay, so Al2O3.2H2O. Now bauxite, there is a different types bauxite. In this formula there is a different types of compounds. The first is gibbsite. The formula is aluminium hydroxide, AlOH whole thrice. The second one is wachmite, and the third one is a diasphore. This is not important. This is not important, but just learn about this. Okay, now bauxite contains 30% Al2O3. In the formula of bauxite there is a 30% of alumina. Okay, so now how to the procedure of aluminium extraction. This is only for flow chart. So now there is a formula of bauxite. First bare process is there. So in the bare process bauxite converted to alumina, and then after hot lot process, now the formation of aluminium. This aluminium is a 99% pure, and then after 1% impurities is there. It means again process of Hooke process, and the formation of pure aluminium 99.99% pure aluminium. Okay, clear? Now the first process, concentration of ore by bare process. So now concentration of bauxite. The bauxite is concentrated by bare process. Okay, bauxite is crushed and heated with NaOH, with forms sodium aluminate. तो बॉक्साइड फर्स्ट बॉक्साइड को क्या करेंगे, क्रश या ग्राइंड कर लेंगे. देन आफ्टर हीट विथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट. जैसे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, मिनरल कंटेनिंग AlOH होल थ्राइस इज प्रेसिपिटेट. जैसे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ. जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये किसमें बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज कॉल्ड व्हाइट प्रेसिपिटेट. देखो इसका डायग्राम यहाँ पे शो किया है. पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से बॉक्साइड डालेंगे. ओके, क्रशर या ग्राइंड करेंगे. उसके बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जो कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो कि वाटर के साथ यहाँ पे फिल्टर होगा. फिल्टर होने के बाद थोड़ा बहुत जो मड होगा, रेसिड्यू होगा, वो यहाँ पे कलेक्ट होगा, और फिर ये यहाँ पर रिएक्ट करके यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बनाएगा जो होगा एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड. फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैल्सिनर होगा, तो फॉर्मेशन किसका होगा, एल्यूमिना. इसी में हम लोग ने पढ़ा था कि बॉक्साइड का बेयर प्रोसेस से एल्यूमिना का फॉर्मेशन होता है. तो नाउ इन दिस प्रोसेस द केमिकल रिएक्शन इज देयर. बॉक्साइड रिएक्ट विद 2 NaOH, द फॉर्मेशन ऑफ NaAlO2. दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, and sodium aluminate react with water molecule, then the formation of white precipitate. Okay, and again this white precipitate in the calciner tube is there. So aluminium hydroxide is converted into alumina and water molecule. Clear? This is a simple chemical reaction to form alumina from bauxite. Now then after the next reaction is Al2O3 reduction by Howlett process. मतलब in this reaction इसमें एल्यूमिना जो फॉर्मेशन होगा, एल्यूमिना का आप किस में कन्वर्जन कराना है, एल्यूमिनियम में. दिस इज 99%. तो इन दिस केस Al2O3 रिडक्शन बाय Howlett process. तो रिडक्शन ऑफ Al2O3. प्रोसेस नेम इज Howlett process. Al2 इज मिक्सड विद, देखो अभी Al2 को किस में मिक्सड करना है, क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फार. Cryolite Na3AlF6. This is a ore of aluminium and fluorspar. This is a ore of fluorine and calcium also. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड में आयरन कंटेनर विद कार्बन लाइनिंग, एंड एनोड में होगा ग्रेफाइट. मॉल्टन एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड एट कैथोड. ये अभी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन होगा.
देखो अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाई इज क्रायोलाइट यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। हम क्रायोलाइट का यूज क्यों करते हैं? देखो इन दिस रिएक्शन यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो उतना टेम्परेचर हम लेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए इसमें क्रायोलाइट डाला जाता है। क्रायोलाइट क्या करता है? इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसकी एब्सेंस में करोगे तो ये टेम्परेचर इसमें 2250 टेम्परेचर तक जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब CaF2 का यूज क्या होता है? देखो फ्लोस्फार जिसको बोलते हैं, फ्लोस्फार इंक्रीजेस द फ्लूडिडिटी सो दैट द लिबरेटेड एल्यूमिनियम मेटल मे सिंक एट द बॉटम ऑफ द सेल। मतलब ये क्या करेगा? फ्लूइड बनाएगा, जिसके कारण से इनके जो आयंस हैं वो इजिली क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे सेल के अंदर। तो देखो पहले इसका डायग्राम समझो। द डायग्राम इज व्हाट? दिस इज अ हॉट-हॉटलेट प्रोसेस। देखो यहाँ पे ग्रेफाइट एनोड है और यहाँ पर आयरन टैंक है जिसमें कार्बन की लाइनिंग है, दिख रहा है? दिस इज कार्बन लाइनिंग एज कैथोड। तो कैथोड किस चार्ज का होता है? नेगेटिव। कैथोड में हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। एनोड में क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या होगा? अब मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फार, इसके अंदर ये धीरे धीरे क्या होगा? मेल्ट होके कहाँ पे आएगा? मॉल्टन एल्यूमिनियम। दिख रहा है यहाँ पर? ये मॉल्टन एल्यूमिनियम यहाँ पे मैंने इस कलर से शो किया है। उसके बाद इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, आउटलेट फ्रॉम मॉल्टन एल्यूमिना। क्लियर? अब देखो इसका प्रोसेस क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एट कैथोड में क्या होगा? एल्यूमिनियम जो है, कैथोड में बताया था रिडक्शन होता है, तो एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट होगा? Al3+ फॉर्म में, और इसको पता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम। तो हॉटलेट प्रोसेस में क्या होता है? प्योर एल्यूमिनियम किस में मिलता है? कैथोड पे। और द नेक्स्ट इज कार्बन है आपके पास, कार्बन लाइनिंग वाला है ना, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यही कार्बन अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा, और यहाँ पर कुछ बबल्स टाइप के बनने स्टार्ट होंगे। तो दिस इज ओनली सिंपल। अगर कोई पूछे कि एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन किस इलेक्ट्रोड पे होता है, तो आप बोलोगे कैथोड पे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 99% प्योर एल्यूमिनियम बन गया। अब इसका 1% अभी भी इम्प्यूरिटीज है। इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं? रिफाइनिंग हूफ्स मेथड। अब यहाँ पे 99.9% मिलेगा हमें प्योर एल्यूमिनियम। तो देखो एक्चुअली है क्या, इसमें 3 फेज दिख रहे हैं, 1 2 3। ये भी क्या है? एक आयरन वेसल है, कार्बन लाइनिंग दी हुई है। अब यहाँ पे कार्बन लाइनिंग किसका वर्क कर रहा है? एनोड का। और ये जो आपको ग्रेफाइट के जो रॉड्स दिख रहे हैं, ये किसका वर्क कर रहा है? एज अ कैथोड। जस्ट अपोजिट है। क्लियर? अब देखो जो इसमें से जो हमें मॉल्टन एल्यूमिनियम मिला है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि अभी भी इसके अंदर इम्प्यूरिटीज 1% है। और इसके साथ साथ हम इसमें क्या डालते हैं? मॉल्टन फ्लोराइड्स, जो इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। अब जैसे ही इसमें प्रोसेस स्टार्ट होगा, इम्प्योर एल्यूमिनियम हम इस हॉपर से डालेंगे, यहाँ पे आके कलेक्ट होगा। उसके बाद जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या होगा? ये जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है ये मेल्ट होते होके कहाँ पे जाएंगे? ऊपर की तरफ। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें जो इम्प्यूरिटीज है उनका वेट क्या है? ज्यादा है, तो वो नीचे बॉटम में कलेक्ट होते जाएंगे, और जबकि प्योर एल्यूमिनियम का वेट कम है तो वो ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। क्लियर? तो एट कैथोड एल्यूमिनियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा। एनोड पे क्या होगा? Al3+ में। यानी इस प्रोसेस में भी किसमें प्योर एल्यूमिनियम मिल रहा है हमें? एट कैथोड पे। क्लियर? क्लियर 100%? ओके। एंड नाउ द रिवीजन अगेन। देखो और हमने क्या लिया था अभी पीछे? बॉक्साइड लिया था, उसको मैंने कॉन्सेंट्रेशन कराया था बेयर प्रोसेस में, फिर ये रिएक्शन करवाया था, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला था, इसका कैल्सिनर करा के हमने एल्यूमिना बनाया था। फिर हॉटलेट प्रोसेस में हमने क्या किया था? एट कैथोड पे बनाया था 99% प्योर। उसके बाद हमने कौन सा प्रोसेस किया था? हूप्स प्रोसेस। यहाँ भी दिखाओगे तो प्योर 99 इज वेरी, बहुत प्योर होता है। क्लियर? ओके, क्लियर। एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यूज पता ही है, फॉइल्स में होता है, किचन अटेंसिल्स में देखा होगा, जो हमारे कुकर्स होते हैं उसमें भी एल्यूमिनियम होता है, विंडो के फ्रेम्स में भी होता है, कॉर्नर पे अपने घर में भी देखना विंडो फ्रेम्स में होगा एल्यूमिनियम। एंड एरोप्लेन पार्ट्स बनाने में भी एल्यूमिनियम का यूज होता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। ओके, तो जस्ट वॉच द वीडियो एंड देन आफ्टर, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। क्लियर स्टूडेंट? ओके।